Hello everyone, welcome back to Pharmacology by MKT. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So guys, in today's lecture, we will be starting with a new system after autocoids, and that is called as the local anesthetic drug. Okay? So we will be starting with local anesthetic drug. Now this topic, that is local anesthetic drug, we will complete this topic under this heading. First is what is anesthesia. Then what is local anesthesia, what is general anesthesia, the definition of local and general, then what is the classification of local anesthetic drugs, their mechanism of action, and some miscellaneous points about the local anesthetic drugs. Okay? So we'll start with the anesthesia. What is anesthesia? Then what is local anesthesia? What is general anesthesia? What is the classification? How your local anesthetic drug is classified? Their mechanism of action and some drugs in that, and some miscellaneous points about the local anesthetic drug in general. Okay guys, so we'll start with first anesthesia. So what do you know what is anesthesia? Anyone? Okay, correct. So anesthesia is nothing but it is reversible loss of sensation, guys. Okay, so what is anesthesia, guys? Yes, it is reversible loss of sensation, and the most common sensation is, guys, the pain. Okay, so the pain is the most common sensation which is lost in the anesthesia, but it is reversible loss of sensation. ठीक है, अब अगर हम लोग पहले टाइप ऑफ एनेस्थीसिया में गाइस आते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल एनेस्थीसिया. सो लोकल एनेस्थीसिया मींस इट लोकल, ठीक है. सो इट ब्लॉक्स, व्हाई इट इज कॉल्ड लोकल? बिकॉज इट ब्लॉक्स पेरिफेरल नर्व. ठीक है. Now guys, since this is local, it does not cross or it does not block the brain nerves, or it does not block the nerves in the brain. ठीक है. So since it does not block nerves in the brain, so therefore it does not cause loss of consciousness. Correct? So याद रखो guys, in local anesthesia, since it is blocking, guys, yes, it blocks the peripheral nerve. ठीक है, जिसके वजह से वो कहाँ ब्लॉक नहीं, किसका नर्व कर रहा है? इट इज नॉट ब्लॉकिंग द नर्व्स ऑफ द ब्रेन. देयरफॉर द पेशेंट the patient will be conscious while performing the procedure by local anesthesia. ठीक है, so the patient will not lose the consciousness, so it does not cause loss of consciousness. अगर हम लोग general anesthesia में आते हैं guys, so general anesthesia they block nerves in brain. ठीक है. Now since they block nerves in the brain, yes, it will cause loss of consciousness. So it will cause loss of consciousness. ठीक है. So this is the major difference between local anesthesia, general anesthesia. Local anesthesia, they block the peripheral nerve, so it will not cause loss of consciousness, while the general anesthesia block the nerves in the brain, therefore the patient will have loss of consciousness. ठीक है, understood? Okay, so हमारा मेन टॉपिक क्या है गाइस? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. सो हम लोग मेनली फोकस करेंगे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पे. So we understood what is anesthesia, we understood what is local anesthesia, what is general anesthesia. ठीक है. Okay, so local anesthetic topic is very important for your any branch you will go. ठीक है. If you become a normal MBBS practitioner also, definitely you will use the local anesthetic drug for many procedures like Foley's catheter insertion. ठीक है, many procedures. अगर आपको CLW सूचर भी मारना है, टाका भी मारना सीखना है, so you have to give first local anesthesia. Foley's catheter डालना है, परवरेक्टल एग्जामिनेशन करना है, एनी प्रोसीजर, अ बेसिक प्रोसीजर जो PHC CHC में भी हर जगह हो रही है. इट्स वेरी कॉमन इन योर क्लिनिक ऑल्सो. यू विल डू ऑल दिस procedure, so you need to understand the local anesthetic drug.
ठीक है. सो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल चूज, यू विल ऑप्ट फॉर एमएस एनेस्थीसिया ऑल्सो, डेफिनेटली वहां तो आप इन डिटेल पूरा एनेस्थीसिया पढ़ोगे. ठीक है. सो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, सारे एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम हो. ठीक है. सो हम लोग अपना वापस फोकस आ जाते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पे. अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट, और वी कैन से द some important properties of local anesthesia, local anesthetic drug, guys, you should know. ठीक है. First point you should know that all local anesthetic drug are lipid soluble. ठीक है. सो इफ दे आर लिपिड सोल्यूबल गाइस, सो क्या करेगा, दे क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर दे हैव गुड पोटेंसी. ठीक है. अंडरस्टूड. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट यू शुड नो अबाउट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. ठीक है. नाउ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, local anesthetic drug are weak bases, or they are weak basic drug, are weak basic drugs, and weak basic drug guys are lipid soluble. तो जितना ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होंगे उतना ज्यादा वो क्रॉस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, और उतनी अच्छी उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, देयर पोटेंसी विल बी मोर. ठीक है. नाउ गाइस इस चीज का हम लोग फायदा उठा सकते हैं. हमने बोला लोकल एनेस्थेटिक ड्रग क्या है, वीक बेसिक ड्रग. ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस के साथ मिला दूंगा, तो क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी विल ऑल्सो अगेन इंक्रीज. सो वी आर एडिंग, जस्ट एड सोडियम bicarbonate with local anesthetic drug. So what will happen when you add sodium bicarbonate with local anesthetic drug? What happens? It will become more lipid soluble, so it will have greater potency plus longer duration of action. समझ रहे हो guys? Yes. So याद रखो, so when we add sodium bicarbonate इन दी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, जब दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, सो इट विल हैव अ ग्रेटर पोटेंसी एज वेल एज द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. सो एक चीज याद रखो, ऑल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दे आर लिपिड सोल्यूबल, से दे क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन, द ड्रग विच क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन विल हैव अ गुड एक्शन. और अगर मैंने उस लिपिड सोल्यूबल ड्रग को एक और स्ट्रॉन्ग बेस में मिला दिया, सो वो और ज्यादा लिपिड सोल्यूबल हो जाएगा, एंड इट विल हैव more greater onset of action as well as duration of action अच्छा रहेगा, plus greater potency रहेगी. ठीक है. So all local anesthetic drug can be mixed with NaSCO3 और more lipid soluble बन जाते. Exception, there is one exception, except we have bupivacaine. Guys don't worry, हम लोग जब उसकी क्लासिफिकेशन पे आएंगे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के, तो you will hear the name of bupivacaine, except bupivacaine which is not soluble in sodium bicarbonate. Please remember, it is the only local anesthetic drug which is not soluble in sodium bicarbonate. ठीक है. So we should not mix bupivacaine with sodium bicarbonate. Understood? Okay. Okay guys, अब हम लोग आ जाते हैं, अभी हमने देखा तो डेफिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, एंड सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ local anesthetic drug. Okay, now we'll start with sensitivity of local anesthetic drug to the nerve fiber. मतलब कौन से nerve fiber, और मतलब वी कैन से ऑटोनॉमिक, सेंसरी, मोटर, कौन किस पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इफेक्ट ऑफ your local anesthetic drug to different nerve. So sensitivity of local anesthetic drug to the nerves we should know. हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, हायर सेंसिटिविटी,
to lower sensitivity. ठीक है, we should know. Now first, autonomic nerves, they are more sensitive to local anesthetic drug than the sensory nerve, which is more than the motor nerve. Second, लेस डायमीटर वाले नर्व जितने भी हैं, दे आर मोर सेंसिटिव देन द मोर डायमीटर वाले नर्व. थर्ड, myelinated nerves, they are more sensitive towards the local anesthetic drug compared to non-myelinated nerves. Now these nerves are also classified into A, B, C. A is more sensitive than B, which is more sensitive than C. Now A में कौन से टाइप के नर्व आते हैं? It has A delta, it has A gamma, A delta, A beta, A alpha. Now A delta is nothing but your muscle tone. This is pinprick movements. This is, we can say, the touch. This is the motor movement. B is preganglionic sympathetic nerve fiber. And C is the temperature fibers, the one who carries the temperature fibers. अब याद रखो guys, अभी हमने बोला the most sensitive nerves, they are the autonomic, then sensory, then the motor. The nerves which has less diameter are more sensitive than the more diameter nerves. The myelinated nerve fiber are more sensitive, means they first anesthetize, then the non-myelinated nerve. अब nerves में भी we have divided into A, B, C type. Now A is A maybe we have subtypes A gamma, A delta, A beta, A alpha. So A gamma is for the muscle tone, which carries the muscle tone fiber. A gamma fibers, A delta fibers, they carries the pinprick fibers. A beta, they carries the touch sensations, and A alpha carries the motor fibers, and B, they are the preganglionic sympathetic nerve, and C is the one which carries the temperature sensation. ठीक है, अब नर्व्स में अगर गाइस देखें तो कौन सा सेंसेशन सबसे पहले लॉस होता है जब हम लोग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं? तो याद रखो, इट इज द मसल टोन. इट इज द फर्स्ट सेंसेशन ऑफ द नर्व विच गेट लॉस्ट. फर्स्ट सेंसेशन विच गेट लॉस्ट, to get lost. So please remember guys, the first sensation of the nerve which gets lost by the local anesthetic drug is the muscle tone, and the last sensation is temperature. The last sensation which gets lost is temperature. So please remember, A is more than B, which is more than C. So ये sensitivity का order है of your nerve fiber, mainly the myelinated nerve fiber हम लोग बोल सकते हैं, या in general the nerve fibers, that is peripheral nerve fibers. ठीक है, sorry, in general the fibers. ठीक, okay. So A greater than B, greater than C. A may be the most sensitive. The first sensation to get lost by the anesthetic drug is your muscle tone, and the last which get lost is the temperature. Understood? Okay. अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. Now guys, please remember that local anesthetic drug, they have a aromatic benzene ring. ठीक है, so it has a hydrophobic aromatic benzene ring. Now this benzene ring is attached with the intermediate compound. It is attached, this is attachment with intermediate ring, we can say. Now in this intermediate ring, either they have
ester compound or they have amide compound in it. ठीक है. So हमारा मेन चीज क्या है, that your local anesthetic drug is a aromatic ring. Now this aromatic ring is attached with an intermediate compound. Now this intermediate compound either they contain the ester ring or they contain the amide ring. Please remember, either they contain ester ring or they contain amide ring. Understood? So depending on this, whether they contain the ester ring or whether they contain the amide ring, your local anesthetic drug is classified as the amide local anesthetic drug and the ester local anesthetic drug. ठीक है? Okay. So we'll start with classification of local anesthetic. पहले classification देख लेंगे, फिर हम लोग mechanism पे आएंगे. ठीक है? So classification of local anesthetic drug. ठीक है. So as I have told you that it is classified as amide containing or amide local anesthetic drug, or ester local anesthetic drug. ठीक है गाइस. सो अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग और एस्टर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. अब अमाइड में हम लोग आते हैं गाइस. नाउ अमाइड को कैसे याद रखना है, द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग विच आर अमाइड. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर अनिमोनिक, रेड से लिख भी रहा हूं, लिप बाम. सो रेड लिप बाम वी यूज लिप बाम, सो रेड लिप बाम. ठीक है. Now R stands for guys ropivacaine, E stands for etidocaine, D stands for dibucaine, Li stands for is lignocaine or lidocaine. This is also called xylocaine. P stands for prilocaine, B stands for bupivacaine, A stands for articaine, L for levobupivacaine and M for mepivacaine. ठीक है. सो कैसे याद रखना है अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, जस्ट रिमेंबर रेड लिप बाम. द निमोनिक इज रेड लीप बाम. ठीक है. अंडरस्टूड. ओके. अब हम लोग आते हैं एस्टर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पे. जस्ट रिमेंबर पुअर बॉयज कुक टू प्रूव. P stands for procaine, B stands for benzocaine, C stands for cocaine or chloroprocaine, T stands for tetracaine, and this proof stands for paraprocaine. Understood? So the mnemonic is poor boys cook to prove. So each word, the first word of each word is a ester local anesthetic drug. Here it is a red lip balm. ठीक है. अब एक चीज गाइस इसमें you should note it down that all amide local anesthetic drug, अगर आप ध्यान से देखो सबके पास दो आए हैं. If you can see each amide local anesthetic drug they contain 2I. ठीक है. So please note it down, it contains 2I.
while ester में अगर आप आ जाओ, ester local anesthetic drug, it contains only one I. So only one I. यहां 2I. ठीक है. एक्सेप्शन अगर हम देखिए, देखो गाइस, सो लिग्नोकेन का एक और क्या नाम है, लाइडोकेन. तीसरा नाम इसका है जाइलोकेन. अब जाइलोकेन देखोगे तो वहां पे कितने आए हैं गाइस, ओनली वन आए. सो जाइलोकेन इज जस्ट, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन के दे कैन आस्क इन दी वाइवा द टीचर्स कि भाई जाइलोकेन कौन से क्लास का ड्रग है, एस्टर है कि अमाइड है. तो यू शुड नो जाइलोकेन इज अनदर नेम ऑफ लिग्नोकेन और लाइडोकेन विच कंटेन one I. ठीक है, इट इज द एक्सेप्शन, बट इट इज लिग्नोकेन विच कंटेन्स 2I. ठीक है, तो याद हो जाएगा दोनों. ओके, सो रेड लिप बाम एंड पुअर बॉयज कुक टू प्रूव. ठीक, ओके. और गाइस यू शुड नो सम फ्यू पॉइंट्स अबाउट द एस्टर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. ठीक है. Now this ester local anesthetic drug, normally they are not very commonly used as amide local anesthetic drug. अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे the amide they are everywhere, that is lignocaine, we have bupivacaine, they are everywhere, they are used very commonly. ठीक है, बट हमारा ये जो है they are not very very commonly used drug. ठीक है, तो हम लोग इसमें से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट वी शुड नो. अगर हम लोग आते हैं कोकेन के बारे में, तो यू शुड नो गाइस, कोकेन इज द फर्स्ट नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. शुड नोट इट डाउन, इट इज द फर्स्ट नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. ठीक, सो कोकेन इज द फर्स्ट नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लांट दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका. डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट Erythroxylum coca. Erythroxylum coca. Everyone should know that this is derived from Erythroxylum coca, the first natural local anesthetic drug. Okay. Now this cocaine which is derived from a plant that is Erythroxylum coca, उसकी एक खराब property that it causes addiction. It causes addiction. Now since it is causing addiction, it is banned from the market. It is banned from the market. ठीक. Now next very important point about cocaine is that it is the only local anesthetic drug. It is the only local anesthetic drug which has sympathomimetic property. Please remember guys, it is the only local anesthetic drug. It is the guys only local anesthetic drug which has sympathomimetic property. इसका मतलब क्या होता है guys? इसका मतलब ये होता है सर, it releases epinephrine, that is adrenaline and non-adrenaline. It increases epinephrine and norepinephrine, जिसके वजह से क्या होगा ब्लड वेसल में. सो इट इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक ड्रग विच causes vasoconstriction, because sir epinephrine, norepinephrine, alpha receptors, so alpha 1 में they will cause vasoconstriction. So only local anesthetic drug which causes vasoconstriction. याद रखो, remaining all other local anesthetic drug cause vasodilation. Please remember. So your cocaine is the only local anesthetic drug which causes vasoconstriction because it is sympathomimetic drug, because it releases epinephrine, norepinephrine, thereby causes vasoconstriction. But all other local anesthetic drug, they cause vasodilation. Understood? Okay. Now one more thing about cocaine. समझो cocaine addiction हो गया है. Now cocaine addiction can cause CNS toxicity. Yes, so it can precipitate seizures in the brain. ठीक है. So the cocaine addiction का drug of choice is anti-epileptic. भाई अगर CNS में seizures आ रहे हैं,
convulsions आ रहे हैं, you have to give anti-epileptic. So the anti-epileptic which are given, they are gabapentin, GABA, and और टॉपिरामेट. इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं, टॉपिरामेट. सो दे आर द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो हम लोग कहां देते हैं गाइस? यस, इन कोकेन एडिक्शन वी गिव this anti-epileptic drugs, either gabapentin or we can give topiramate. Understood? So this is all about cocaine which you should know. Okay. Now benzocaine के बारे में बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, that benzocaine it can be applied on, we can say, cut surface of skin, because it has minimal absorption. Please remember, so it is the one which can be applied on the cut surface of the skin because it has minimal absorption. Understood? Okay. ठीक है. Now next about Procaine. Now about this Procaine, you should know Procaine, it is the first synthetic local anesthetic drug. ठीक है. सो इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक. नेचुरल कौन है गाइस? यस, इट इज कोकेन जो पहला नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, और प्रोकेन हमारा क्या है? फर्स्ट सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग अबाउट प्रोकेन इज दैट यू नो गाइस, पेनिसिलिन जब आप एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ोगे, दैट इज एंटीबायोटिक, उसमें पेनिसिलिन एक क्लास आता है. अब पेनिसिलिन का एक सिंथेटिक पेनिसिलिन है, अगर हमने पेनिसिलिन में प्रोकेन का चेन ऐड कर दिया, ठीक है, सो इट बिकम्स प्रोकेन पेनिसिलिन. एंड प्रोकेन पेनिसिलिन दे आर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स विच आर लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स. सो प्रोकेन अगर ऐड हो गया पेनिसिलिन में, इट बिकम्स लॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स. ठीक है. ओके. वन मोर पॉइंट अबाउट Procaine, that it is a drug of choice for malignant hyperthermia. So just remember, it is a drug of choice for malignant hyperthermia. So it is a genetic condition. ठीक है, which is caused by some anesthetic drug that is called मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया. सो उसमें हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे गाइस? सो प्रोकेन विल बी ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया. जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक. ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट मूव होते हैं क्लोरोप्रोकेन पे. सो क्लोरोप्रोकेन. नाउ इसके बारे में क्या गाइस इंपॉर्टेंट है? जस्ट रिमेंबर, क्लोरोप्रोकेन इज the least potent and shortest acting drug. It is the shortest and least potent drug. So chloroprocaine is least potent है, shortest acting है, और please remember the metabolite of chloroprocaine is sodium bisulfite, which is neurotoxic. Please remember, so it is contraindicated in spinal anesthesia. भाई ब्रेन में जाके इशू कर रहा है, सो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हमें देना ही नहीं है. सो you should know chloroprocaine is shortest acting, it is least potent local anesthetic, ester local anesthetic drug. The metabolite of chloroprocaine is sodium metabisulfite, which is neurotoxic, so it is contraindicated in spinal anesthesia. Understood? Okay. And the last drug या हमें पता होना चाहिए, that is tetracaine. Just remember guys, tetracaine हमारे ये सारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है एस्टर वाले, उसमें इट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग
we can say longest acting ester local anesthetic drug. Please remember, please note it down that tetracaine is a longest acting ester local anesthetic drug. अगर आपने देखा होगा गाइस, एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, हमने इस क्लास ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा, बिकॉज either they are neurotoxic, they are banned, they are not very commonly used. Hence this ester local anesthetic drug is just to remember the drugs. हमें ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़े पॉइंट. देखो, ना ही वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, ना ही वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बट एमसीक्यू आ सकता है. ठीक है, तो यू शुड नो द नेम्स एंड जितना पॉइंट यहां बताया है इट इज मोर देन सफिशिएंट टू नो. ठीक, ओके गाइस, हम लोग को पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हम लोग चालू करेंगे, बट इन जनरल यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ ऑल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. सो प्लीज रिमेंबर योर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. भाई कैसे वो लॉस ऑफ सेंसेशन करेंगे, कैसे पेन सेंसेशन लॉस करेंगे. सो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, दे ब्लॉक सोडियम चैनल, they block sodium channel, and you know guys, sodium channel is the one which carries pain sensation. समझ रहे हो? तो क्या करेगा जब सोडियम चैनल in nerve carries पेन सेंसेशन. ठीक है, सो हमारा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग क्या करेगा, इट विल ब्लॉक द डीपोलराइजेशन. ब्लॉक डीपोलराइजेशन मतलब जब सोडियम चैनल एंट्री लेंगे नर्व्स में, इट कॉजेस डीपोलराइजेशन एंड विल फील द पेन सेंसेशन. सो ये क्या कर देगा हमारा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, इट ब्लॉक्स डीपोलराइजेशन ऑफ सोडियम चैनल. भाई कब वो सेंसेशन कैरी कर रहे हैं, ड्यूरिंग ओपन स्टेट. याद रखो, ओपन स्टेट बोलते हैं या इनएक्टिव स्टेट. सो इन दोनों समय, इसी समय मेनली ओपन स्टेट और इनएक्टिव स्टेट. ठीक है, ओपन स्टेट मतलब जब हमारा सोडियम कैरी कर रहा है क्या, पेन सेंसेशन इन दी नर्व, और उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाता है सेंसेशन कैरी करने के बाद. तो हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है वो मेनली टारगेट करेगा ओपन स्टेट ऑफ सोडियम चैनल और इनएक्टिव स्टेट ऑफ सोडियम चैनल. तो उसके वजह से क्या होगा, द डीपोलराइजेशन गेट्स ब्लॉक. अगर डीपोलराइजेशन ब्लॉक हो जाएगा सो नर्व सेंसेशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एंड देयर विल बी विच विल कॉज, जिसके वजह से देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन, मेनली लॉस ऑफ पेन सेंसेशन. समझ लिए सब लोग? सो जस्ट रिमेंबर दैट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ब्लॉक्स सोडियम चैनल. It blocks sodium channel because sodium channel is the one which carries the pain sensation inside the nerve. तो जब वो अंदर लेके सेंसेशन जा रहा है कौन, सोडियम, दैट इज ओपन स्टेट में, और उस समय क्या करेगा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हम लोग जब देंगे, सो अंदर से लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. जस्ट रिमेंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज नर्व और हम लोगों ने लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दिया है. नाउ दिस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग विल एक्ट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द नर्व. दिस इज नर्व, this is nerve. Now this is carrying sodium channel. ठीक है, सो हमारा ये क्या करेगा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, दिस इज लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, इट एक्ट्स इनसाइड द नर्व एंड इट ब्लॉक्स द सोडियम चैनल जो क्या कैरी कर रहा है, पेन सेंसेशन. ठीक है, सो देयर बाय द पेन सेंसेशन इज लॉस एंड देयर बाय द पेशेंट विल नॉट फील एनीथिंग कि हाँ डॉक्टर साहब दर्द नहीं हो रहा है. देन यू डू योर प्रोसीजर. अंडरस्टूड? सो यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इट ब्लॉक्स द सोडियम चैनल मेनली इन द ओपन स्टेट और इन एक्टिव स्टेट. दिस आर द वन स्टेट जहां पे सोडियम हमारा कैरी कर रहा है क्या, नर्व सेंसेशन, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है. ठीक, ओके. अब हम लोग गाइस आ जाते हैं अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पे. अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हम लोग चालू करेंगे, बट एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आपने सुना होगा सभी ने कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को वी मिक्स विथ एड्रेनालिन.
सुना है? यस। एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो। व्हेन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग is mixed with adrenaline and the ratio is 1:2. ठीक है, that what is this? So one part of your local anesthetic drug and adrenaline is mixed in, or is diluted, we can say, is mixed in 2 lakh proportion of water or distilled water, we can say. Understood? The concentration of local anesthesia with adrenaline जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एक part of this is mixed with the 2 lakh proportion of distilled water, that is 1:2. ठीक है, that we should know. So ratio is this. ओके अब फायदा क्या होता है भाई, एड्रेनालिन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के साथ मिक्स हो गया है। देखो वी नो कि सर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का मेन काम है नर्व सेंसेशन लॉस करना, ठीक। ओके सो अगर मैंने एड्रेनालिन दे दिया तो क्या होगा, पहला चीज, when local anesthetic drug is mixed with adrenaline, first it decreases absorption of local anesthetic drug in blood, decreases absorption of local anesthetic drug in blood। ध्यान से सुनो, अगर ब्लड में ही एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो नस पे ही काम करेगा, सो देयर बाय इट विल डिक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। थर्ड चीज, इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये भी एक फायदा हो गया। अब फोर्थ चीज देखो, एड्रेनालिन क्या कर रहा है, मिक्स हुआ है, सो एड्रेनालिन वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है जिसके वजह से डिक्रीजेस ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है, जहां पे दिया जाएगा वहां के अगल बगल के ब्लड वेसल को एड्रेनालिन वैसो कंस्ट्रिक्ट कर देगा, सो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, अगल बगल नहीं होगी। अंडरस्टूड? सो योर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग कैन बी मिक्स्ड विद एड्रेनालिन, इट हैज एडवांटेजेस that it decreases absorption of local anesthetic drug in blood, it decreases toxicity of local anesthetic drug, it increases duration of action and it decreases bleeding because the adrenaline has caused vasoconstriction। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये गाइस ये एडवांटेज है, अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे अगर एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के साथ दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड आर्टरीज, जहां एंड ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल पिना, यहां पे मुझे ऑपरेट करना है, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को किसके साथ दे दिया, एड्रेनालिन के साथ। सो एंड आर्टरीज में क्या हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। सो वैसो कंस्ट्रिक्शन कैन, एंड आर्टरी का वैसो कंस्ट्रिक्शन कैन लीड टू गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन। यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज रिमेंबर, लोकल एनेस्थेटिक प्लस एड्रेनालिन is contraindicated in end organ surgeries, जहां पे end arteries है, ठीक है, end organ surgery where we have end arteries, अगर वहां दे देंगे it can cause vasospasm which can lead to yes dry gangrene, ischemia, so we should not give। so example ear pinna surgery, ear pinna एंड टिप है ना, टिप ऑफ द ऑर्गन। देन वी ऑल्सो हैव पिनाइल सर्जरी, देन वी ऑल्सो हैव नोज टिप सर्जरी एंड फिंगर सर्जरी। समझ रहे हो गाइस? सो जहां पे एंड ऑर्गन आएगा ना, वहां पे वी कैन नॉट गिव एड्रेनालिन, that is local anesthetic drug with adrenaline, because adrenaline will cause vasoconstriction of the end arteries which can lead to ischemia, which can lead to vasospasm, which can lead to dry gangrene. So like in ear pinna surgery, penile surgery, nose tip surgery, finger surgery, it is contraindicated। ठीक है, understood? or also it is contraindicated in hypertension, heart disease। patient already hypertensive है, आप
ये सब दोगे एड्रेनालिन, इट विल कॉज मोर वासोकंस्ट्रिक्शन. सो हाइपरटेंशन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हार्ट डिसीज ऑल्सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सो हम लोग वहां पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग मेनली सिर्फ देंगे. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. वी कैन नॉट गिव एड्रेनालिन अलॉन्ग विद देम. ठीक, ओके. माइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग मुझे चालू करना है. अब उसके पहले एक और चीज याद रखो, द डिफरेंस बिटवीन अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एंड एस्टर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. सो अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग और एस्टर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यहां लिख देता हूं. सेकेंड डिफरेंस मेटाबॉलिज्म, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं. थर्ड, एक्सेप्शन टू द मेटाबॉलिज्म, एक्सेप्शन टू मेटाबॉलिज्म. थर्ड, लिवर डिसीज क्या है आप अभी बताऊंगा. फोर्थ एंड फिफ्थ, एनी एडवर्स इफेक्ट. ठीक है, नॉट एडवर्स इफेक्ट, वी कैन से सेफ्टी प्रोफाइल हम लोग बोल सकते हैं एक. ठीक है, ठीक है. सो हम लोग एक एक करके देखेंगे 5 मेन डिफरेंस बिटवीन द अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एंड द एस्टर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. पहला है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. सो जस्ट रिमेंबर योर एस्टर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, दे आर शॉर्टर एक्टिंग, shorter acting. This is longer acting. Now why ester are shorter acting? Because of the metabolism. Please write down, it is metabolized, that is ester containing local anesthetic drug are metabolized in plasma by an enzyme called esterase. So it is shorter acting, plasma में ही metabolize हो गया. Now this is metabolized, that is amide containing local anesthetic drug are metabolized in liver by liver and उसका degradation, it is degraded by enzyme called amidase. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है, अब एक्सेप्शन टू मेटाबॉलिज्म मतलब इन दोनों में एक एक ड्रग है जो एक्सेप्शन है. सो अगर हम लोग एस्टर में आते हैं, एक्सेप्शन इज कोकेन. सो कोकेन इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर. यहां पे एक्सेप्शन है टीकेन. ठीक है, विच इज मेटाबोलाइज्ड इन प्लाज्मा. ठीक है, अब गाइज यही हमें समझ रहा है. देखो ये लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है, ये प्लाज्मा में. सो कौन लिवर में सेफ होगा, ये कि ये? यस, इट इज एस्टर. सो सेफ इन रीनल लिवर डिसीज. दिस इज unsafe in liver disease, unsafe in liver disease. ठीक है, सो लिवर डिसीज में ये. अब सेफ्टी प्रोफाइल, इसका मतलब क्या? एस्टर दे कॉज एलर्जी, बिकॉज देखो मैक्सिमम दे आर, फॉर एग्जाम्पल कोकेन इज अ प्लांट वन और प्लांट इज कॉजिंग एलर्जी. सो जस्ट इन जनरल याद रखो, इट कॉजेज एलर्जी, इट इज लीस्ट एलर्जिक. सो सिंस लीस्ट एलर्जिक है, सो वेरी कॉमनली यूज्ड. समझ रहे हो? तो हमारा गाइस मेन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो क्या है? अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. अंडरस्टूड? ठीक, ओके. सो ये 5 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन अमाइड एंड एस्टर यू शुड नो. ठीक है, अब गाइस आ जाते हैं हमारे अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पे, जो लास्ट पार्ट है हमारा.
वापस में नाम निमोनिक लिख देता हूं, दैट इज रेड लिप बाम. You should know ropivacaine, etidocaine, dibucaine, lignocaine, prilocaine. It is bupivacaine. It is articaine, levobupivacaine, and we have mepivacaine. ठीक है गाइस. सो ये हमारे क्या है, अमाइड. ये अगर सामने लिखा रहेगा सो इट इज गुड टू डिस्कस. ठीक है. अब इसमें से चीज याद रखो गाइस, दिस डाइब्यूकेन. ठीक है. दिस इज द मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग, मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग what amide local anesthetic drug. Please remember this. ठीक है. Okay. Articaine, it is very safe or it is mainly given in dental surgeries, mainly given in dental surgery. ठीक है. Now, etidocaine is unsafe in dental surgery or any major procedure. ठीक है. because it causes bleeding. तो गाइस ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इसमें हर ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में एक या दो पॉइंट आपको आनी चाहिए. ठीक है. सो आर्टिकेन इज सेफर इन डेंटल सर्जरी, बट एटिडोकेन इज नॉट सेफ इन डेंटल सर्जरी बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. ठीक है. अब रोपिवाकेन इज नथिंग बट modified form of bupivacaine. ठीक है. सो इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बुपिवाकेन, इतना आपको पता रहना चाहिए. ठीक. ओके. अब हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग विच वी शुड नो इज द लिग्नोकेन और लाइडोकेन और जाइलोकेन. ठीक है. सो लिग्नोकेन, लाइडोकेन, जाइलोकेन कैन बी अ शॉर्ट नोट बिकॉज उसके इंडिकेशंस भी हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, उसका एक स्पेशल मिक्सचर भी यूज होता है और अब बहुत कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है. वी कैन से ड्रग ऑफ चॉइस इन एवरी प्रोसीजर. जहां पे भी लोकल एनेस्थेसिया चाहिए जस्ट यूज ब्लाइंडली लिग्नोकेन. ठीक. ओके. सो गाइस हम लोग आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, दैट इज लिग्नोकेन. सो वी कैन से हम लोग लिग्नोकेन सब लोग जानते हैं, उसका दूसरा नाम इज लाइडोकेन एंड वन मोर नेम इज जाइलोकेन. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारे लोगों की सेम रहने वाली है, दैट इट ब्लॉक्स द सोडियम चैनल इन द ओपन स्टेट और इन एक्टिव स्टेट, जिसके वजह से इट प्रिवेंट द डिपोलराइजेशन, जिसके वजह से इट कॉजेस लॉस ऑफ सेंसेशन. ठीक है. मैकेनिज्म हमेशा यही लिखना. ओके. अब लिग्नोकेन अगर हम लोग देखेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमन और commonly used local anesthetic drug. Most commonly used local anesthetic drug. चलो अब कहाँ यूज होता है, वी शुड नो. भाई इतना कॉमन है तो कहाँ यूज होता है. ठीक है. पहला देखो, ऑल डेंटल प्रोसीजर वी कैन से, चाहे आपको टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना हो, चाहे रूट कैनाल कराना हो, ऑल डेंटल प्रोसीजर्स आई हैव सीन दैट वी यूज दिस. ठीक है. रूट कैनाल और टूथ एक्सट्रैक्शन वी यूज इट. ठीक है. सेकेंड, अगर आपको एनी प्रोसीजर वेयर वी अप्लाई lignocaine on skin and mucous membrane.
वहां पे हमको लॉस ऑफ सेंसेशन थोड़ा करना है, तो देर आर प्रोसीजर्स जहां पे वी हैव टू अप्लाई द लिग्नोकेन एंड द लिग्नोकेन विल बी पास थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द फर्स्ट प्रोसीजर इन दैट वी कैन से इज फोलिस कैथेटर इंसर्शन गाइस। वी नो हम लोग फोलिस कैथेटर के ऊपर क्या लगाते हैं, लिग्नोकेन 2% जेली, और फिर हम लोग इंसर्ट करते हैं थ्रू दी पेनाइल ऑरिफाइस और दी urethral orifice in female, ठीक है, Foley's catheter insertion. Second, also for per rectal examination on the gloves, ठीक है, tip of the gloves we apply the lignocaine and we insert our finger, ठीक है, the glove fingers inside the rectum to examine, so per rectal examination. Also per vaginal examination also, ideally should be followed properly in hygienic condition per vaginal examination. Patient safety is first always, ठीक है, so all procedures, ठीक, okay. और डिफरेंट, अब नाउ हम लोग एनेस्थीसिया पे, अलग अलग एनेस्थीसिया पे कहां दे सकते हैं, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया अगर मुझे देना है, ठीक है, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया, कोई हम लोग हैंड सर्जरी कर रहे हैं, फुट सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, सो इंट्रावीनसली हमें थोड़ा उसका एक्शन और अच्छा चाहिए, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए, बिकॉज लोकली देंगे तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। सो कोई थोड़ी मेजर प्रोसीजर कर रहे हैं, हैंड सर्जरी, फुट सर्जरी, तो हमें इंट्रावीनसली एनेस्थेटाइज करना है विथ लिग्नोकेन, सो इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया देंगे, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बियर्स ब्लॉक in hand surgery, foot surgery. So we use 0.5% of lignocaine concentration अगर देखेंगे तो, please remember the concentration used is 0.5%. next type of anesthesia अगर हम लोग देखें, नर्व ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, नर्व ब्लॉक, ठीक है, नर्व ब्लॉक में we use 1 to 2% of lignocaine, ठीक है, ओके, अब मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक, अगर एपिड्यूरल ब्लॉक दे रहे हैं, एपिड्यूरल ब्लॉक, ठीक, सो एपिड्यूरल ब्लॉक कहां देते हैं, बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड लिगामेंटम फ्लेवम, सिक्स्थ इज स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर देना है with the help of this lignocaine. So spinal anesthesia with lignocaine is given between arachnoid and pia mater. ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन आप लोग प्लीज नोट इट डाउन, स्पाइनल एनेस्थीसिया में द कॉन्सेंट्रेशन इज 5%, एपिड्यूरल इट इज 1 to 2%, ठीक है, एंड कहाँ गया हमारा लोकल एनेस्थीसिया, दिस इज ऑल लोकल एनेस्थीसिया, सो ऑल दिस इज लोकल एनेस्थीसिया, सो इट इज 2 to 4%. प्लीज रिमेंबर, लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर कर रहे हैं, सो 2 to 4%, लोकली अप्लाई कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं 2 to 4%, एपिड्यूरल 1 to 2%, स्पाइनल 5%, nerve block 1 to 2%, intravenous regional anesthesia 0.5%, which is also called Beer's block, ठीक है, understood this much, okay. Now there is one drawback of lignocaine, that lignocaine cannot be given in intact skin because there is no absorption, इंटैक्ट स्किन में नहीं दे सकते, इट कैन नॉट बी गिवन इन इंटैक्ट स्किन, ठीक है। अब टू ओवरकम दिस लिग्नोकेन को मिक्स किया गया विथ प्राइलोकेन, सो लिग्नोकेन साथ में प्राइलोकेन मिक्स किया एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एम्ला। एम्ला का फुल फॉर्म प्लीज राइट डाउन, ये शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लिग्नोकेन concentration 2.5% plus prilocaine 2.5%,
ठीक है. So amla is nothing but it is a mixture, it is a eutectic mixture of lignocaine 2.5% and prilocaine 2.5%. ठीक है. इससे क्या होता है, देखो दोनों मिक्सचर जब आते हैं, अब याद रखो लिग्नोकेन और प्राइलोकेन जब मिक्स होते हैं सो क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ व्हेन दे मिक्स दे विल डिक्रीज, एंड जिसके वजह से क्या होगा, दे कैन पेनिट्रेट द स्किन. सो व्हेन देयर इज मिक्सचर ऑफ लिग्नोकेन विद प्राइलोकेन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल हाई है, इंडिविजुअल ज्यादा है, बट जब दोनों मिक्स हो जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ डिक्रीजेस, जिसके से द पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेस. सो पेनिट्रेशन इंक्रीजेस, सो देयरफॉर दे कैन पेनिट्रेट द इंटैक्ट स्किन. तो गाइस ये एमला जो है, एमला जो मिक्सचर है लिग्नोकेन और प्राइलोकेन का, ये कहां यूज हो सकता है, ठीक है. इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक सरफेस एनेस्थेटिक मिक्सचर, ठीक है, जो लोकली अप्लाई किया जाता है ऑन इंटैक्ट स्किन. कहां कहां पे, ठीक है. पहला इंडिकेशन ऑफ एमला अगर देखेंगे तो गाइस, अगर समझो किसी को नीडल फोबिया है, भाई वो नहीं चाहता कि भाई नीडल मुझे लगे, ठीक है. सो इट इज फर्स्ट इंडिकेशन इज नीडल फोबिया. सेकेंड इंडिकेशन इज स्किन ग्राफ्ट. देखो यू कैन नॉट इंजेक्ट स्किन ग्राफ्ट, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है. एंड थर्ड इज अ स्किन कंडीशन एंड दैट इज कॉल्ड एज एटोपिक डर्मेटाइटिस, because it will damage the skin अगर इंजेक्ट किया गया. इसीलिए we have a surface anesthetic mixture of prilocaine 2.5% and lignocaine 2.5% which is called EMLA, which is the full form is eutectic mixture of local anesthetic drug. ठीक, अंडरस्टूड. एमला के बारे में पता होना चाहिए कि लिग्नोकेन अकेला पेनिट्रेट नहीं कर सकता इंटैक्ट स्किन, कैन नॉट बी गिवन ऑन इंटैक्ट स्किन, ठीक है. इसीलिए वी हैव टू मिक्स दिस प्राइलोकेन विथ लिग्नोकेन कॉल्ड एज एमला विद दिस थ्री इंडिकेशंस मेनली. अंडरस्टूड. ओके, अब गाइस हम लोग आते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन पे. ठीक है. अब लिग्नोकेन का आपको बस एडवर्स इफेक्ट याद रखना है बाय निमोनिक, दैट इट इज CNS toxic. Now C stands for it causes convulsion in the form of seizure, and it is most common, very most common if it is given. N stands for numbness, perioral numbness, tongue anesthesia, टंग और पेरियोरल तरफ हमें नमनेस दिखेगा. S फॉर स्लर्ड स्पीच, T फॉर ट्रेमोर्स, O फॉर overdosage can lead to hypotension and bradycardia. X for, just remember, excitability ऑफ, देखो कोई भी अगर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, सो फर्स्ट इट कॉज एक्साइटेबिलिटी ऑफ CNS फॉलोड बाय गाइस डिप्रेशन, CNS डिप्रेशन. I stands for irregular heartbeat, that is it can lead to arrhythmias. And last C stands for coma. Very high dose, not very, मतलब तुरंत नहीं होगा, it is very high dose, not very rare, हाँ ठीक है. But these are the adverse effects of lignocaine that everyone should know. देखो lignocaine का is very commonly always a drug of local anesthetic choice for every procedure, every surgeon, ठीक है. इसीलिए उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, मैकेनिज्म कहाँ यूज हो सकता है, उससे कहाँ क्या कॉन्सेंट्रेशन यूज होते हैं, एंड द एडवर्स इफेक्ट एंड द एमला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके गाइस, अब प्राइलोकेन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. प्राइलोकेन किसके साथ हम लोग मिक्स किए हैं? यस, लिग्नोकेन के साथ, दैट इज एमला. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग अबाउट प्राइलोकेन इज दैट प्राइलोकेन एंड लिग्नोकेन
can be given as intravenous regional anesthesia. ठीक है, IVRA, that is intravenous regional anesthesia, that is called BS block. It is, we can say, the few local anesthetic which can only be given for intravenous regional anesthesia for any hand foot surgery. ठीक है, but bupivacaine cannot be given. Bupivacaine is contraindicated in as intravenous regional anesthesia because it is cardiotoxic. Please remember, it is the most cardiotoxic local anesthetic drug, that is bupivacaine, which cannot be given as intravenous regional anesthesia to perform some hand surgery. It is mainly the prilocaine as well as the lignocaine which are given. It is very few. ठीक है, एक और है, एक और इनमें से है, I will tell you वो कौन सा है जो IVRA के रूप में यूज कर सकते हैं, but bupivacaine cannot be given because it is highly cardiotoxic. ठीक है, okay. Now one more thing, प्राइलोकेन का एक डिसएडवांटेज और है, जब वो लिग्नोकेन के साथ एमला मिक्सचर में यूज होता है, ठीक है, इन नियोनेट्स, अगर बच्चों में दिया गया है, किसी बच्चे का स्किन ग्राफ्टिंग है, सो इट कैन कॉज, प्राइलोकेन कॉजेस मिथ हीमोग्लोबिनेमिया. सो प्राइलोकेन इन नियोनेट्स cause with hemoglobinemia. ठीक है, please remember, so it is contraindicated in neonates. So prilocaine should not be given in neonates because it causes with hemoglobinemia. ठीक है, and कैसे cause करता है? Please remember, prilocaine forms a metabolite called orthotoluidine. ठीक है, orthotoluidine, which causes methemoglobinemia. ठीक है, so prilocaine forms orthotoluidine which causes methemoglobinemia, so it is contraindicated in neonates. So prilocaine should not be given in neonates. ठीक, okay. आते हैं अब डाइब्यूकेन पे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, दैट इज डाइब्यूकेन. नाउ डाइब्यूकेन हम लोग ने क्या देखा था गाइस? इट इज लॉन्गेस्ट acting, also it is most potent local anesthetic drug. Please remember, Dibucaine is longest acting plus most potent local anesthetic drug. ठीक है, now इसका एक use है, very common use, indication, it is diagnosis of pseudocholinesterase deficiency. What is this guys? Pseudocholinesterase, ठीक है, और ब्यूटेरिल कोलिनेस्टेरेज deficiency. What is this guys? Just remember, we have a skeletal muscle relaxant guys, succinylcholine, correct? सबको याद होगा, succinylcholine is a muscle relaxant. ठीक है, now it is metabolized by pseudocholinesterase. ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइस. फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल में देर इज डेफिशिएंसी ऑफ सूडोकोलिनेस्टेरेज, तो क्या होगा? सक्सिनाइलकोलिन क्या होगा? मेटाबोलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सक्सिनाइलकोलिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी. सो द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग which is used to diagnose the pseudocholinesterase deficiency before giving succinylcholine, ठीक है, is Dibucaine. ठीक है, and there is an assessment scale which is called as Dibucaine number. Dibucaine, it is done by Dibucaine number. ये क्या होता है? अगर Dibucaine number 80 to 100 आया,
नॉर्मल नंबर, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का असेसमेंट में डाइब्यूकेन नंबर क्या आया आफ्टर गिविंग दिस इंजेक्शन, दैट इज डाइब्यूकेन, और पाया गया कि भाई इट हैज अ मैक्सिमम, मतलब अच्छा खासा सूडोकोलिनेस्टेरेज है, एंड इफ द नंबर लाइज बिटवीन 80 to 100, सो इट इज अ नॉर्मल नंबर, इट इज नॉर्मल। अगर 40 to 60 आया, वी कैन से इट इज डेफिशिएंट, मतलब दिस एंजाइम इज डेफिशिएंट, एंड सक्सिनाइल कोलिन अगर दिया गया इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। और अगर लेस देन 20 आया इट इज वेरी मच डेफिशिएंट, इट कैन लीड टू मसल पैरालिसिस। अगर हमने सक्सिनाइल कोलिन दे दिया तो, आप समझ रहे हो, बिकॉज मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएगा ना सक्सिनाइल कोलिन अगर देंगे तो डेफिशिएंट इंडिविजुअल में। सो इट इज डन बाय अ नंबर कॉल्ड डाइब्यूकेन नंबर। डाइब्यूकेन नंबर कितना होना चाहिए नॉर्मली? 80 से 100 इट इज नॉर्मल। अगर 40 से 60 है देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम, एंड लेस देन 20 है सीवियर डेफिशिएंसी। सो अगर सक्सिनाइल कोलिन बिना इस नंबर के असेसमेंट के हमने दे दिया, पेशेंट विल हैव प्रोलॉन्ग मसल पैरालिसिस। इसीलिए दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस दिस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट to diagnose pseudocholinesterase or butyrylcholinesterase deficiency, and this is for succinyl choline assessment. Before giving succinyl choline, just assess your Dibucaine number. Understood? Okay. लोग अपने लास्ट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पे गाइस आ जाते हैं, दैट इज बुपीवाकेन। So bupivacaine, guys, just remember it is also a amide containing local anesthetic drug. Now first point about bupivacaine is that it is longer acting than lignocaine, but it is cardiotoxic and it is not used commonly than lignocaine. Longer acting than lignocaine. बस एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज मैक्सिमम differential blockage of nerve। इसका मतलब क्या होता है? It mainly blocks sensory nerve than motor nerve। ठीक है, सो याद रखो बुपीवाकेन जो है ना, इसकी खास बात है दैट इट हैज मैक्सिमम डिफरेंशियल ब्लॉकेज ऑफ नर्व। इसका मतलब ये होता है इट मेनली ब्लॉक्स, नॉर्मली क्या लोकल एनेस्थेटिक ड्रग करते हैं, दे मेनली ब्लॉक योर फर्स्ट ऑटोनॉमिक, देन सेंसरी, देन मोटर, बट इसके पास एक खास प्रॉपर्टी है दैट इट मेनली एंड मेनली ब्लॉक्स द सेंसरी नर्व कंपेयर टू द मोटर नर्व, और इसी प्रॉपर्टी के लिए वी कैन यूज बुपीवाकेन ड्यूरिंग लेबर, बिकॉज ड्यूरिंग लेबर देयर इज अ पेन टू द फीमेल, और फीमेल का पेन सेंसेशन कैसे लॉस करेंगे? सेंसरी नर्व को ब्लॉक करो। मोटर को ब्लॉक नहीं करना है, बिकॉज मोटर को ब्लॉक कर देंगे तो यूट्राइन मूवमेंट्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, वो हमें नहीं करना है। बट सेंसरी नर्व जो हमारा पेन हो रहा है ड्यूरिंग लेबर टू दी फीमेल, वो ब्लॉक कर देंगे, एंड वी कैन यूज बुपीवाकेन। सो याद रखो बुपीवाकेन हैज सम डिफरेंशियल ब्लॉकेज प्रॉपर्टी टू द नर्व। ऑल्सो इट इज मोस्ट preferred local anesthetic drug in spinal anesthesia। ठीक है, देखो वेरी कॉमनली यूज्ड इज लिग्नोकेन, बट लिग्नोकेन का एक इशू है बिकॉज इट इज न्यूरोटॉक्सिक, सो स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज बहुत कॉमनली नहीं होता, बट बुपीवाकेन इज कार्डियोटॉक्सिक, सो इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड और प्रिफर्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक, ओके। सो बुपीवाकेन के बहुत यूजेस नहीं है, एक यूज है ड्यूरिंग लेबर टू ब्लॉक द सेंसरी पेन सेंसेशन, एंड सेकेंड वेरी प्रिफर्ड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब हम लोग आ जाते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट ऑफ बुपीवाकेन पे। So as I have already said that it is cardiotoxic, so it is bad to the heart. So just remember bad heart, the mnemonic of adverse effect of the drug is bad heart. B stands for bradycardia, causes bradycardia. A stands for arrhythmias, that is ventricular arrhythmias. D stands for it causes decreased cardiac output. Decrease. H for hypotension.
E for yes, excitability of CNS, followed by CNS depression. Not very common than lignocaine. Okay, A stands for it causes apnea, that is respiratory depression. R stands for it causes, it is refractory cardiac arrest. What is refractory cardiac arrest, guys? देखो, there is persistent cardiac arrest. Heart is going in shock despite of giving epinephrine. Injections हम लोग दे दिए 3-4 बार, but still the heart is not able to pump. So there is cardiac arrest, that is called refractory. And the last T is toxic, most toxic to cardiac. So it is most cardiotoxic local anesthetic drug. So just remember by mnemonic: bad heart, B for bradycardia, arrhythmias, decrease output, cardiac output, hypertension causes excitability of CNS followed by CNS depression, apnea, respiratory depression, cardiac arrest, and it is very toxic to the heart. ठीक है, so हम लोग बोल रहे हैं ना, it is much more toxic to the heart than the lignocaine. Okay, अब ब्रैडीकार्डिया अगर पेशेंट को हो गया इसकी वजह से, तो क्या दोगे आप लोग? ऑलवेज गिव एट्रोपिन. यू नो एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक. एंटी एरिथमिया हो गया तो ऑलवेज गिव एंटी एरिथमिक ड्रग. गाइस ये पढ़ेंगे, बस अभी आपको याद रहना चाहिए नाम, अमायोडेरॉन. ठीक है, अमायोडेरॉन, यू शुड नो द नेम. अब एक चीज प्लीज रिमेंबर गाइस, चाहे कोई भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हो, लिग्नोकेन हो, बुपीवाकेन हो, डाइब्यूकेन है, कोई भी, अगर किसी भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है, याद रखो, टॉक्सिसिटी ऑफ एनी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, प्लीज रिमेंबर, अगर किसी भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, ऑलवेज द ड्रग ऑफ चॉइस इज, आप लोग खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई भी ड्रग, कोई भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ने टॉक्सिसिटी कॉज की है, तो याद रखो क्यों टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है? बिकॉज इट इज बाइंड टू दैट ऑर्गन और जाके टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है. बाइंड क्यों हुआ जाके ऑर्गन पे? बिकॉज सर वो लिपिड सोल्यूबल है. तो हम लोग क्या दे देंगे? जस्ट गिव 20% lipid intralipid injection. So 20% intralipid injection दे दो, lipid injection. So what will happen? This lipid emulsion injection or this lipid injection, what it will do? It will attract the local anesthetic drug. अब local anesthetic drug इससे bind हो जाएंगे, तो जिस organ से वो bind थे उस वहां से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे. तो याद रखो, कोई भी टॉक्सिसिटी होगी, अगर कोई एग्जाम में पूछ रहा है कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा टॉक्सिसिटी का, लिग्नोकेन, सो ऑलवेज से व्हाट? यस, इट इज 20% इंट्रालिपिड इंजेक्शन. अंडरस्टूड? ओके. नाउ गाइस, अभी हमने देखा था बुपीवाकेन, देखा मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक है. अब इसमें एक प्रॉपर्टी इसकी देख लो, लीवोबुपीवाकेन, इसमें क्या है? इट इज लेस कार्डियोटॉक्सिक एंड मोर पोटेंट. उसी का भाई है. एंड यस, रोपीवाकेन के बारे में मैंने बोला था, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बुपीवाकेन. नाउ दिस can also be given as intravenous regional anesthesia, that is Beer's block. So याद रखो guys, the local anesthetic drug जो हम लोग intravenously दे सकते हैं वो कौन कौन है? लिग्नोकेन, प्राइलोकेन and yes, it is रोपीवाकेन. Please remember, ये हम लोग दे सकते हैं इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थेसिया, दैट इज बियर्स ब्लॉक. बट बुपीवाकेन नहीं देख सकते बिकॉज इट इज कार्डियोटॉक्सिक. और लीवोबुपीवाकेन लेस कार्डियोटॉक्सिक है, बट लेस है, बट इट इज मोर पोटेंट. Understood? So this is all about the amide local anesthetic drug, and this is all about your very important topic, that is local anesthetic drug as per UG, PG, INI, FMG for all medical graduates anywhere they are studying. ठीक है? So this is all about the topic. So guys, will meet in the next lecture with general anesthesia. ठीक है? So till then, please keep learning, keep enjoying. Thank you so much.